then what are the reasons of disasters, how disasters affect the human life, the social life, the animal life, and the economical life also. Means it will totally disturb the normal life of the nation. Okay, normal life of the nation will be totally disturbed because of the disasters. Now there are different kinds of disasters which are generally classified into two types. Natural disasters are there and man-made disasters are there. Okay, there are two types of disasters. Natural disasters are there, man-made disasters are there. Natural disasters, we can say storms, cyclones, floods, okay, earthquake, etc. These are the natural disasters. Then also dry and wet famine, दुष्काळ ज्याला आपण म्हणतो. These are the natural disasters. Now what are the man-made disasters? How they can be arise into the world? So man-made disasters are nothing but the bomb explosion, testing of the nuclear bombs, right? Then different kinds of unknown man-made disasters are also there. We are going to learn about that. Okay, I will learn I will teach you that particular thing. So basically disasters are of two types: man-made disasters and natural disasters. Okay, man-made disaster and natural disaster. Now in your textbook on page number 110, that is 110, types of disasters are given. Don't be confused. What I have told, basically there are two types: man-made and natural. But if we go for the further studies, that is deep studies, these disasters are actually classified on the environmental position, on the environmental and surrounding position, that is geographical, then biological and man-made. Means what? Natural disasters are classified into two types: geographical and biological. Means what? See, basically means what? At a root level. Basically means what? At a root level. Basically disasters are classified into two types only. Okay, only two types, that is natural disasters and man-made disasters. Natural disasters and man-made disasters. Now see, these natural disasters on the basis of surroundings, on the basis of that particular position criteria, it is also divided into two types: geological disasters, and this natural is again classified into, that is biological disasters. Geological disaster and biological disasters. In the word itself, it explains that biological means what? Related to the plants and animals. Related to the plants and animals. Okay, and geological is again divided into geological is that self only. Okay, so एक बेसिक चार्ट है ये. बेसिकली डिजास्टर्स का क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: नेचुरल एंड मैन-मेड. ठीक है, और फिर नेचुरल और मैन-मेड है ये. फिर नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो क्लासीफाई होंगे जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल में. बायोलॉजिकल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, so this is all about the types of the disasters. Okay, this is terminologies coming under the disaster. Okay, just a minute. We will see one by one. Actually geological comes under the term geophysical, that is geological and then atmospheric terminology. See, now types of disasters: geophysical, biological and man-made. Three types are there: geophysical, biological and man-made. Now this geophysical disaster, geophysical disasters is classified into two types particularly, that is geological and atmospheric. Geological one and second is atmospheric. ठीक है, means geophysical disasters are classified into again two types, that is geological and atmospheric.
अभी जियोलॉजिकल कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी? जियोलॉजिकल डिजास्टर जो होते हैं उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है? तो पहली टर्मिनोलॉजी हमको दी गई है अर्थक्वेक। हम सबको पता है अर्थक्वेक क्या होते हैं, भूकंप जिसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट physical and core activities, that is disastrous activities inside the core of the earth, inside the core of the earth. Core means what? Center of the earth. Okay, because of some physiological and geological different activities, core activities beneath the earth, that is inside the core of the earth cracks down within a fraction of moment. The earth cracks down, divides into pieces within a fraction of second, and because of that the whole particular matter present or that particular region will be collapsed. Okay, because of that means अगर कहीं पे भूकंप होता है तो उसका रीज़न क्या होता है? उस जगह पे, उसी जगह के नीचे परपेंडिकुलर हम बोलेंगे तो सेंटर के अर्थ में, मतलब सेंटरच्या गाभाऱ्यामध्ये अशा काही फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज होतात ज्याच्यामुळे विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ मोमेंट काय होतं, अर्थ क्रॅक होऊन जाते आणि बिल्डिंगच्या बिल्डिंग कितीही ह्यूज अपार्टमेंट असू द्या, किती मोठी एखादे इन्फ्रास्ट्रक्चर तिथे स्ट्रक्चर असू द्या, ते कोलॅप्स होऊन जातं, ह्युमन लाईफ डिस्टर्ब होऊन जाते, झाडाच्या झाडं कोलॅप्स होऊन जातात. नदीच्या खाली जर भूकंप झाला तर नदीच्या नदी पूर्ण गायब होऊन जाते, नदीच्या नदी गायब होऊन जाते. रिमेंबर, भूकंप फक्त जमिनीवर नाही होत, नदीच्या खालीसुद्धा होतात, समुद्राच्या खालीसुद्धा. समुद्राच्या खाली काय आहे? जमीनच आहे बाबा, तिथे सुद्धा भूकंप होतात. आणि अशा वेळेस जर झाला, समुद्राच्या खाली जर भूकंप झाला तर समुद्रातलं पाणी आतमध्ये शिरतं आणि त्यातल्या त्यात जर व्हॉल्कॅनो इरप्शन आलं तर कंडिशन विचारूच नका किती खराब होतं. मीन्स इफ देर इज अ व्हॉल्कॅनो इरप्शन, व्हॉल्कॅनो इज ऑल्सो अ नॅचरल डिझास्टर. ओके, मीन्स ज्वालामुखी ज्याला आपण म्हणतो, जो व्हॉल्कॅनो लावा रस जो आहे तो जर या भूकंपामधून बाहेर निघाला तर सो मेनी पीपल विल बी लूज देअर लाईफ अँड लॉट्स ऑफ इकॉनॉमिकल लॉस इज देअर. सो फर्स्ट इज द अर्थक्वेक, देन सेकंड इज द व्हॉल्कॅनो. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वोल्केनो क्या, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, लावा रस बाहर आता है, तप्त रस रहता है अर्थ के कोर में. ठीक है, कोर ऑफ द अर्थ इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स. अंडरस्टूड? पृथ्वी का जो गाभारा जिसे हम बोलते हैं वो हॉटेस्ट प्लेस है. उसमें बहुत कंटिन्यू बहने वाला और कंटिन्यू उबलने वाला लावा रस होता है, जो अगर बाहर आता है तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. देन देयर इज सुनामी. We all know very well about the tsunami. Tsunami means what? Having the waves on the surface of the ocean high, that is measuring in the meters like 100 meters, 1 kilometer up to high. Okay, 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हाई वेव्स जो होती है, लाटा जो आएंगी ओशन पे, लहरें जो आती है वो 100 मीटर टू 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर तक जाती है. इतनी लंबी लंबी लहरें होती है और वो इतनी स्पीड से आती है कि पूरे के पूरे शहर तबाह कर देते हैं. लाइक हमने अभी पिछली बार देखा था, जापान में आई थी. ठीक है, तो दिस इज सुनामी. इट इज ऑल्सो नेचुरल, दैट इज जियोलॉजिकल. वाई जियोलॉजिकल? इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस. इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज वाई इट इज जियोलॉजिकल. ओके, ये जियोलॉजिकल क्यों है ये बात समझ लीजिए प्लीज़. अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, सुनामी है, ये जियोलॉजिकल क्यों है? क्यों जियोलॉजिकल है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द जियोलॉजी. जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ particular place, particular area on the earth, that is known as the geology. है ना? Geography, what is meant by geography? जियो का ग्राफ. ग्राफ मतलब what? एक हम स्टडी करते हैं ना ग्राफ, that is ग्राफ. ओके, what is meant by geography? एक पर्टिकुलर जियो मैटर का ग्राफ स्टडी करना, मतलब किसी भी एरिया का स्टडी करना. हम लोग देखो जियोग्राफी में ऐसे स्टडी नहीं करते कि पर्टिकुलर लाइफ यहाँ पे ये है, ऐसा है वैसा नहीं. हम लोग स्टडी कैसे करते हैं? अंटार्कटिका खंड, राइट? जियोग्राफी में हाउ वी विल स्टडी देन ओशंस, देन टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया, देन इन इंडिया, देन एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट इन द इंडिया. ये सब क्या है? दैट ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द जियोलॉजी. ओके, देयरफॉर इट इज गिवन द जियोलॉजिकल डिजास्टर्स. Understood? Therefore, it is given the geological disaster. So, earthquake है, volcano है, tsunami है. Then again there is a landslide and landfall. आवाज आ रहा है क्या तुमको? आवाज आ रहा है क्या रे तुमको? आवाज आ रही ना रे? क्लियर? हाँ, गुड. दिख रहा सबको क्लियर? हाँ,
बताया करो तभी हो। हाँ ओके, अभी ये लैंडस्लाइड्स और लैंडफॉल क्या है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। बहुत डेंजरस इवेंट रहता है लैंडस्लाइड्स और लैंडफॉल। लैंडस्लाइड्स और लैंडफॉल मतलब क्या, पहाड़ के पहाड़ डायरेक्टली खिसक जाते हैं नीचे। पहाड़ के पहाड़ डायरेक्टली नीचे खिसक जाते हैं, ज़मीन खिसक जाती है नीचे। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ पर्टिकुलर ये शहर में, नासिक में, लोनार या औरंगाबाद में, इसी लेडी के पास ज़मीन सरकुल एवढा जणांचा मृत्यू। मतलब अभी हम ऐसे खड़े हैं, डायरेक्टली ज़मीन खिसक जाएगी नीचे, हम लोग उस पर गिर जाएंगे। अर्थक्वेक नहीं होता है, ज़मीन खिसक जाए। उसका रीज़न क्या है, ये हम लोग जब भी बोर्स वगैरह कर रहे हैं तो इससे क्या हुआ है, अर्थ में बहुत छेद हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अर्थ में अभी एयर फिलअप हो रही है। तो वो जो एयर होती है वो खेलती रहती है अंदर के अंदर, वहाँ पे गैप्स आते रहते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और लैंड फिलिंग होती है। देन इरोजन इज देयर। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं जो टूट जाते हैं, बहुत उनके वेदरिंग का उस पर परिणाम होता है और वो टूट जाते हैं, उनकी सॉइल क्रिएट हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाते हैं। अल्कलाइजेशन एंड फ्लडिंग इज देयर। अल्कलाइजेशन एंड फ्लडिंग, ये भी मतलब अचानक से, अल्कलाइजेशन में तो अचानक से किसी वाटर बॉडी में अल्कली का बेस बढ़ जाना, उससे भी एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। हमें वाटर कैसा चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ना कि एसिडिक ना कि बेसिक। तो एसिडिक का एसिडिक वाटर होना बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एसिड अगर पानी में गिर जाएगा तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन वो न्यूट्रल वाटर अगर अल्कलाइज हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना, ठीक है। तो ये सब हो गए। These all geological, these all are geological, ठीक है। अभी जियोफिजिकल का जियोलॉजिकल टाइप हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अभी हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक कौन कौन से टाइप से यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक पॉइंट है आपका हॉट एंड कोल्ड वेव्स। हॉट एंड कोल्ड वेव्स, वाटर हॉट एंड कोल्ड वेव्स, ये समर में जो चलती है, अचानक से गर्म वाफ आ जाती है और अचानक से ठंडी वाफ आ जाती है। तो जो भी आइस ऑक्युपाइड देश है, मतलब कोल्ड रीजन प्रदेश है, वहाँ पे ये ठंडी हवाएं अगर चलती है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है लोगों को। ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ विल बी डिस्टर्ब। एंड अगर हॉट वेव्स भी अगर आते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी ये अचानक से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। सो ये डेंजरस होंगी लाइफ के लिए। देन स्नो स्टॉर्म्स एंड स्नोफॉल। स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब क्या, पहाड़ के पहाड़ रहते हैं, देर आर ह्यूज माउंटेन्स इन द आइस ऑक्युपाइड रीजन। सो जस्ट लाइक द लैंडस्लाइडिंग, just like the landsliding, snow falling is there. Sorry, snow. What is that? Snow falling is there, means snow sliding is there. And because of the environmental change, snowfall is there. जैसे हमारी तरफ बारिश पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, वैसे आइस ऑक्युपाइड रीजन में वो स्नो क्यों है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे क्या है, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है हल्के हल्के से. आपल्याकडे गारा पडतात ना, त्यातलाच प्रकार तिकडं, ठीक आहे, तो जो स्नोफॉल आहे. सो दैट इज स्नोफॉल एंड स्नो स्टॉर्म्स. लाइक आपल्याकडे जैसे वादळ येतात, तूफान हमारे यहाँ पे आते हैं, वैसे ही आइस ऑक्युपाइड देश में स्नो के स्टॉर्म्स आएंगे, वैसे ही डेजर्ट में सैंड के स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है. ये बहुत डेंजरस रहते हैं. देन साइक्लोन्स आते हैं. साइक्लोन्स मतलब चक्रवादल जिसको बोलते हैं. ये साइक्लोन जो रहते हैं ये ओशन में आते हैं, वाटर बॉडीज पे, और बहुत नुकसान करते हैं. पूरी की पूरी एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. और किनारों पे जो भी घर रहते हैं या फिर मछुआरे रहते हैं या फिर कोई भी देश रहता है, सिटीज़ रहते हैं, विलेजेस रहते हैं, वो सब उनका नुकसान हो जाता है. देन हेल स्टॉर्म इज देयर, ड्राफ्ट इज देयर. हेल स्टॉर्म मतलब जो नॉर्मल तूफान हमारे यहाँ पे आते हैं. स्टॉर्म मतलब ये सब तूफान के ही टाइप्स है. देन ड्राफ्ट. ड्राफ्ट इज नथिंग बट द सेमाई, दुष्काळ ज्याला आपण म्हणतो, ड्राफ्ट इज ऑल्सो देयर. देन फ्लड, बाढ़ आना है ना, फ्लड है, बाढ़ आना. देन मेटेरॉइड, एटमॉस्फेयर. मेटेरॉइड मतलब क्या, ये जो स्पेस में मेटेरॉइड्स रहते हैं उल्कापात ज्याला म्हणतो. अगर वो पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है,
बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे लोनार सरोवर, वहाँ पे वो बहुत दिन पहले एक उल्का गिरी थी, वहाँ पे पूरा गड्ढा हो गया है, तो उस वक्त सराउंडिंग का पूरा एरिया बर्बाद हो गया था। अभी वहाँ पे नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। तो मेटेओराइट इज ऑल्सो अ डेंजरस पार्ट। एंड सनस्पॉट्स, सनस्पॉट मतलब अचानक से कभी कभी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए अगर होता है, तो सन रेज जो रहते हैं वो अचानक से एकदम बढ़ जाते हैं, उससे क्या होता है, हीट एनवायरनमेंट की बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द जियोफिजिकल डिजास्टर्स। क्लिक इट। So it is about the geophysical disasters, that is geological and atmospheric. Geological: earthquake, volcano, tsunami, landslides, erosion, alkalization and flooding. Then atmospheric: hot and cold waves, snowstorms and snowfall, cyclones, hailstorm, drought, flood, meteorite and sunspots. अभी इस चीज़ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए प्लीज। There will be दिस टाइप ऑफ लॉन्ग हाइटेड वेव्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सुनामी, अगर ये ओशन का सरफेस है, यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल वेव्स होते हैं, लाटा जला होता है नॉर्मल है, बट इट इज वेरी मच हाइटेड, एज मच इट कैन कवर अ पर्टिकुलर टावर आल्सो। ओके, सो दीज आर द सुनामी वेव्स। ओके, एंड साइक्लोन जो होता है समुद्र में आने वाला तूफान, ठीक है, तो ये अगर ये एक समुद्र, यहाँ पे क्या, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैप, वैक्यूम, यस्टरडे मैंने एक्सप्लेन किया, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोन इज राउंड वेव, जिसको हम बोलेंगे समझने के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड इन दिस वे डायरेक्शंस, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये डिफरेंस है सुनामी और साइक्लोन में, अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। Yes, sir. Sir, again one question was there. Okay. 1 मिनट। सुनामी हवा के जोर से बहने की वजह से आती है, ठीक है, या फिर समुद्र में कोई अगर भूकंप हो रहा है, समुद्र में खलबली मच गई है, तो उसकी वजह से आते हैं। और साइक्लोन जो है वो क्यों आते हैं, स्टॉर्म और साइक्लोन, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम क्रिएशन इन द एटमॉस्फेयर, अंडरस्टूड। नाउ आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। That floats are written in both geological and atmospheric. सॉरी, And flood. But in both geological and atmospheric. yeah, flooding and flood, yeah, it is given, it may be a printing mistake or we can differentiate it into flooding, जिसको हम बोलेंगे, तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ जो रहती है नेचुरल, अगर इसको हम जियोलॉजिकल के हिसाब से अगर पकड़ते हैं जियोलॉजिकल में अगर हम फ्लडिंग को पकड़ते हैं, तो पर्वतों से बहने वाली जो नदियाँ रहती है, अगर अचानक से बहुत बारिश हो जाती है तो वहाँ पे तो कोई डैम नहीं रहेगा, तो अचानक से नदी की लहर बढ़ जाती है और वो जंगल के जंगल तबाह कर देती है, पर्वतों को भी फिसला देती है। दैट इज दैट टर्म इन रिगार्डिंग टू द फ्लडिंग। और फ्लड हम जिसको बोलते हैं पूरा ना, तो वो फ्लड क्या होता है कि अभी हर लोकेलिटी में डैम बन गए हैं, ठीक है, तो डैम बन गए हैं, डैम किस लिए, वाटर स्टोरेज के, लेकिन अगर बहुत बारिश होती है तो डैम में पानी बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो दीवारें जो होती है वो फूटने का डर रहता है, तो उस वक्त क्या करते हैं, डोवर्स खोल दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से फ्लड आ जाती है रिवर्स में, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके ओके, एनीबडी एल्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम, दिस डेंजरस सिचुएशंस क्रिएटेड बाय द नेचर। ओके, ये आज हमने जो फिजिकल पार्ट